Next question. In Young's double slit experiment, using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen with path difference lambda is m unit. The intensity of light at a point where the path difference lambda by 3 is. तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है, you have a Young's double slit experiment. You are using monochromatic light of wavelength lambda. Intensity of the light at a point with path difference lambda is m unit. तो पहले तो ये समझ लो what they are telling you is, आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि what is the formula for resultant intensity at a point. Resultant intensity at a point I, IR equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 into I2 cos of phase difference phi, right? या तो ये पता होना चाहिए, otherwise ऐसा है, you should remember resultant intensity का formula. If the intensities are same, जो भी आपके पास दो पॉइंट सोर्सेस है, दोनों पॉइंट सोर्सेस के अगर एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो उसके इंटेंसिटीज भी सेम होंगे. तो आपको ये याद होना चाहिए कि इंटेंसिटी सेम मतलब 4i cos स्क्वायर phi by 2. ये याद होगा तो भी चलेगा. अब आपको बोला है पहले केस में जब पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा, तो इंटेंसिटी कितना था m. तो केस नंबर 1, when path difference delta is lambda, then resultant intensity I is equal to m. ऐसा आपको बोला है. This is what is given to you, right? Now if you remember, एक फॉर्मूला था जिसमें से आप पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर ये फॉर्मूला याद है तो व्हाट यू कैन से इज, बट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. बट पहले केस में पाथ डिफरेंस कितना दिया है आपको, कितना दिया है पहले केस में, लैम्डा. ये और ये हो गया कैंसल. Therefore resultant intensity IR will be 4i cos square what is phi, 2 pi. So 2 pi by 2 cancel and cancel. What is cos pi minus 1, उसका स्क्वायर प्लस 1. तो आपको मिल जाएगा IR which is just 4i, और इसको क्या बोला है इन्होंने, m बोला है, लिखा है मैंने ऑलरेडी, राइट? तो आपको मिल गया m इक्वल टू 4i. अब in the case 2 what you have is, in case 2 आपको पूछा है what is the resultant intensity if the phase difference is, if the path difference is lambda by 2. So sorry, lambda by 3. if delta is lambda by 3, good. अगर डेल्टा ये लैम्डा बाय 3 है तो फेज डिफरेंस phi will be 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा बाय 3 कैंसल एंड कैंसल, तो 2 पाई बाय 3. व्हाट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3, अरे 2 पाई 360 by 3 120. Cos of 120 is minus half because it is cos of 90 plus 30. Cos of 90 plus 30 is minus sin 30 and sin 30 is half. ये दिमाग में बिठा लो, cos of 120 is minus half. याद रहना चाहिए. This is something you need to remember. This is minus half, right? तो अब सेकेंड केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, therefore resultant intensity in this case, वैसे तो थोड़ा गलती किया है मैंने, but anyways I'm just telling you कि कहाँ नहीं करना है. IR इक्वल टू क्या था, 4i cos square what, phi by 2, cos square phi by 2, करेक्ट. और हमने क्या निकाल लिया, सीधा phi, करेक्ट. हाँ, तो ये गलती नहीं करनी है आपने. तो यू नीड टू नो दिस कि एक बार आपको मिल गया ना एंगल, फेज डिफरेंस मिल गया, दैट्स ओके, पुट इट हियर नाउ. तो ये आ जाएगा 4i
cos square. What was pi? 2 pi by 3. और ये नीचे भी 2 है, cancel. Good. So this is 4i cos square. What is cos of pi by 3? Cos of pi by 3, cos of 60 degree कितना? हाफ. इस केस में हमको आंसर सेम मिल रहा है क्योंकि वहां पे भी आपका हाफ आया था, उसका स्क्वायर करोगे माइनस हाफ था, उसका स्क्वायर करोगे प्लस 1/4 होगा. यहाँ पे भी आ रहा है. दिस इज 1/2 का स्क्वायर. तो दिस इज 4i by 4. मतलब इट इज इक्वल टू i. बट व्हाट इज i? i क्या है? i क्या है यहाँ से? m/4. तो i is m/4. तो आंसर विल बी m/4. So what you will have is, therefore you will have from here, आपको यहां से मिलेगा i equal to m/4. तो m/4 आ गया आंसर. m/4 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी. This is how you are supposed to solve this. Next question. If two light waves having same frequency have intensity ratio मतलब I1 by I2 is equal to 4:1 and they interfere, the ratio of maximum to minimum intensity in the pattern will be a joke. क्योंकि अभी आपको पता है हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, a lot of questions. अगर आपको याद होगा Imax by Imean was root of I1 plus root of I2 upon root of I1 minus root of I2 का स्क्वायर. अगर आपको इससे भी आगे कुछ याद होगा तो हमने I2 रूट I2 को हम निकाल लेते हैं कॉमन, और रूट I2 को हम कॉमन निकालने के बाद कैंसल आउट करते हैं. डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकालोगे, न्यूमरेटर में से भी कॉमन निकालोगे, कैंसल होगा. तो रूट ऑफ I1 by I2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ I1 by I2 माइनस 1. इसका होगा स्क्वायर. और क्योंकि I1 by I2 4 है, इसका मतलब रूट ऑफ I1 by I2 आपको मिलेगा 2. हाँ, तो 2 plus 1 3. 3/1 का स्क्वायर मतलब 9:1. I think this question we have already done earlier, if I'm not wrong. Anyways, so option number A. Next question. Two beams of light having intensities I and 4i interfere to produce a fringe pattern, मतलब interference pattern on a screen. The phase difference between the beams is pi/2 at point A and pi at B. Then the difference between the resultant intensity at A and B is. इस टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सिमिलर टू दिस. अगर आपको याद होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR is equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos of phase difference phi. तो A पॉइंट पे इंटेंसिटी विल बी I1 कितना है? I प्लस I2 कितना है? 4i प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू 4i cos of pi by 2. दिस इज इक्वल टू 5i. ये आ गया 2i क्योंकि 4 का रूट 2 और 2 4. करेक्ट. I इंटू आई स्क्वायर, उसका रूट अगेन i, बट वैसे भी cos ऑफ 90 इज 0, तो कुछ करके मतलब है नहीं, ये 0 आ जाएगा. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट A इज नथिंग बट 5i. इट इज 5i. Similarly at point B you will have I plus 4i ना प्लस 2. ये तो पता ही है आपको कितना आता है, ये 2 और ये 2i, मतलब टोटल कितना? 4i. व्हाट इज cos ऑफ पाई? क्योंकि B पॉइंट पे यस
cos of pi minus 1. तो IB इक्वल टू I प्लस 4I माइनस 4I मतलब कितना ओनली I. So what is the difference of intensity? Difference of intensity is intensity at A minus intensity at B. At A कितना था 5i, 5i minus I कितना 4i. Option number B, 4i. Option number B. Simple. Next question. If you have two waves represented by y1 equal to 4 sin omega t and y2 equal to 3 sin of omega t plus pi by 3 interfere at a point, the amplitude of the resulting wave is, amplitude of resulting wave r, अगर आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phase difference. पहला इक्वेशन देखोगे तो a1 4 है, 4 का स्क्वायर, दूसरा देखोगे तो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 into 3 और फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3. सिर्फ दोनों इक्वेशंस में एक इक्वेशन में पाई बाई 3 है, दूसरे में कुछ नहीं है, तो फेज डिफरेंस डायरेक्टली पाई बाई 3. अगर ऐसा होता कि यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 लिखा होता तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 विल बी द फेज डिफरेंस, क्योंकि पहले में सिर्फ ओमेगा टी है और दूसरे में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, तो फेज डिफरेंस डायरेक्टली पाई बाई 3. तो अब 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 2 4 8 3 24 24 8 8 into 3 24 cos of pi by 3 cos of half cos of 60 is half 1 and 12 25 मतलब 25 plus 12 अरे 25 plus 12 37 37 का रूट मतलब रफली 6, तो अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी 6, approximately 6, which is option number B. Next question. You have two waves being produced by two sources S1 and S2. Both sources have zero phase difference and have wavelength lambda. The destructive interference of both the waves will occur at point P if S1P minus S2P has the value joke 11 lambda by 2. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. कहाँ पे ऑड मल्टीपल है, ये 5 लैम्डा है, इसको 10 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हो, तो 5 लैम्डा इज 10 लैम्डा बाई 2 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया. 3 लैम्डा बाई 4 it cannot be the answer, it is not a multiple of lambda by 2. 2 lambda मतलब 4 lambda by 2 मतलब अगेन इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो एक ही आंसर ऐसा है विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो ऑप्शन नंबर डी, सिंस इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. हो गया क्वेश्चन खत्म, डन, नथिंग टू राइट. Next question. Two interfering waves having intensities 9i and 4i. Part difference between them is 11 lambda. The resultant intensity at this point will be, resultant intensity वापस से I1 plus I2 plus 2 root of I1 into I2 into cos of phase difference. But phase difference is nothing but 2 pi by lambda into path difference, but path difference is already given to you कितना 11 lambda cancel and cancel, तो ये आ गया 22 pi. Therefore cos of phi is cos of 22 pi. Correct? तो do you remember cos of 2 and pi? Always 1. तो 2 and pi कैसे लिखोगे, वो ऊपर लिखा ही था, अन्य करना ही नहीं चाहिए था इसको चेंज. यू शुड नॉट बी राइटिंग इट 22 पाई, इसको सीधा लिख दो cos of 2 11 pi.
मतलब cos of 2n pi. What is cos of 2n pi? 1. This is 1. Very good. 1. I'll put it there. So resultant intensity at that point will be I1. What is I1? 9i. I2. What is I2? 4i plus cos of course, 2 root of I1 I2. Root of I1 9i, I2 4i और ये 1. 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 6 into 2 12, I square का I, तो 12 plus 4, 16 plus 9, 25. 25 option number D. So resultant intensity is 25I, option number D. Next question. In interference, if I max by I mean is 144 by 81, then what will be the ratio of amplitude of the interfering waves? Joke. Why joke? I max by I mean. आपको याद होना चाहिए, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली याद होना चाहिए, r plus 1 upon r minus 1 का स्क्वायर, where r itself is the ratio of amplitude. ठीक है, तो अब what is this? I max by I mean कितना दिया है? 144 upon 81 equal to r plus 1 upon r minus 1 का स्क्वायर. Taking square root on both sides, 144 का स्क्वायर is 12, 81 का is 9. तो r plus 1 upon r minus 1 cross multiply, 12r minus 12, 9r plus 9. So 12r minus 9r is 9 plus 12. So 3r equal to 21. So r equal to 7. So ratio is 7:1. Option number B. Khatam question. Next question. In Young's double slit experiment, an interference pattern is obtained on a screen by a light of wavelength 6000 angstrom coming from coherent sources S1 and S2. At certain point P on the screen, third dark fringe is formed. Then the part difference is joke or in microns. Micron मतलब micrometer. तो आपको याद है, do you remember path difference for destructive, क्योंकि क्या बोला है dark. Path difference for destructive, if you remember, is 2m minus 1 lambda by 2. Good. अगर इसको आप कैपिटल D by स्मॉल d लिख देते हो तो it becomes distance from the center of the screen. यहाँ पे आपको क्या पूछा है? आपको डायरेक्टली पूछा है path difference. S1p minus S2p is nothing but path difference. कौन सा डार्क फ्रिंज है? थर्ड. तो 2 into 3 minus 1, wavelength is 6000, मतलब 6000 angstrom, मतलब 6 into 10 power minus 7 meter by 2. 1 and 3. This is 6 minus 1. 5 into 3, 15 हो गया. ऑप्शन नंबर बी. 15 into 10 पावर माइनस 7, मतलब 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 6. 10 पावर माइनस 6 मतलब माइक्रोन, मतलब माइक्रोमीटर, और 15 into 10 पावर माइनस 1 is 1.5. ऑप्शन नंबर बी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, the slit separation small d is 1 mm and the screen is 1 meter from slit. Capital D दिया, small d दिया है. For a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, the distance of third minima from the central maxima is. वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको पूछा था पार्ट डिफरेंस, और in that case they are asking you distance from the center of the screen. सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस था. ये आएगा 2m minus 1 lambda capital D by 2d. That's it. अब of course you know m की वैल्यू कितनी है? 3. 2 into 3 6 minus 1 5 lambda D by 2d. You know wavelength 500 nanometer मतलब 5 to 10 power minus 7. कैपिटल D कितना है? 1. वेरी गुड.
for us is very good, upon 2 into small d कितना है 1 mm, 1 mm कितना होता है 10 power minus 3 हो गया, 25 by 2 is 12.5, तो 12.5 एक ही जगह पे दिख रहा है, राइट? फिर भी सॉल्व कर लो, 12.5 10 पावर माइनस 7, ये माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 4 टोटल, तो 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 और 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 मतलब 1.25 mm. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The two slits are at a distance of 1 mm. The two slits at a distance of 1 mm are illuminated by the light of wavelength 6.5 into 10 power minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter. The distance between third dark and fifth bright fringe will be. अब देखो ऐसा है, जब आपको ऐसा बोला नहीं हो on the same side है, on the other side है, तो by default on the same side लेके चलना पड़ता है. आपको याद होगा एक क्वेश्चन था जिसमें हमको पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क. तो यहाँ पे उल्टा है ना? वो भी सेम है क्या? सेम है, फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क, तो यहाँ पे भी वही है ये. तो यू नीड टू रिमेम्बर, जिनको याद नहीं वापस से बता देता हूं मैं. दिस इज स्क्रीन. इमेजिन दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन. जो पैटर्न ऊपर बनेगा वैसा ही पैटर्न नीचे बनेगा. नाउ यू हैव, व्हाट यू हैव इज fringes. So you have fringes, something like this. Zeroth bright, then first dark. Just a minute. Okay. So you have zeroth bright, then first dark, then first bright, then second dark, then bright, and then dark. सब चलता रहेगा. So this is what you are going to have. Good. अब क्योंकि आपको according to the question they have not said which side, so by default it will be assumed that on the same side. क्योंकि बोला नहीं है तो हमको assume करके चलना पड़ेगा कि same side पे. Okay, fifth bright and third dark. तो what do you know is center से fifth bright, ये फिफ्थ ब्राइट है, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस यू डिनोट दिस बाय xn. और अगर आपको याद होगा xn इज n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d. और थर्ड डार्क 1 2 and 3, थर्ड डार्क दिस इज xm डैश बोल दो इसको, दिस इज xm डैश, राइट? एंड अगेन I want that you should know this basic formulas. ये basic formulas आपको पता होने चाहिए, by default पता होने चाहिए. What is the distance of mth dark from the center of the screen? 2m minus 1 lambda capital D by 2 times of small d. अब ऐसा है, या तो आप पहले x5, क्योंकि फिफ्थ की बात हो रही है, we are talking about fifth bright and then third dark. तो what you can do is, या तो आप पहले x5 फाइंड कर लो और x3 डैश फाइंड कर लो, देन सबट्रैक्ट करो. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू, हमको दिख रहा है वहां से क्लियरली, हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है xn माइनस xm डैश, मतलब हमें पूछा है ये डिस्टेंस, और हमको दिखता है दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट xn माइनस xm डैश. सिर्फ n की जगह पे 5, m की जगह पे 3, तो 5 and 3, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 लैम्बडा d बाई d माइनस 2 into 3 माइनस 1 लैम्बडा d बाई 2 टाइम्स ऑफ t. इसमें से जो कॉमन निकलता है उसमें निकाल लो. नो, दिस इज 5. तो 5 lambda d by d will be common, 1 minus half. 1 minus half is half. तो ये आ जाएगा आपके पास 5 lambda d by 2 times of d. 5 into wavelength 6.5 into 10 power minus 7
कैपिटल डी कितना बोला है 1, वेरी गुड। और स्मॉल डी कितना बोला है 1 mm, अगेन वेरी गुड। तो 2 into 10 power -3, ये दिस इज अ जोक, 1 जा एंड 2.5 जा। ऑफ कोर्स आपको अभी भी देखा आपने, ये 10 पावर -4 हो गया। व्हाट इज 25 into 65 है ना, 2.5, 6.5। व्हाट इज दिस, हाउ मच इज दिस? 17.5, क्योंकि 65 into 20 130, राइट? 65 into 20 is 130, 65 into 5 32.5, 1625, 170 नहीं आता है, 1625। तो ये आपको मिल जाएगा 6.5 into 2.5, 16.25 रफली। तो अब इसमें एक एडजस्ट कर दो, 10 पावर -1, 1.625 into 10 पावर -3, मतलब 1.625 mm। आंसर में दिया है 1.63 mm। हो गया। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट वाज very very simple. Good. Just a minute, let me make some space and done. तो ऐसा आपको करना है। Good. Next question. Same question, ठीक है। Next question. The slits in Young's double slit experiment have equal width. स्लिट्स का विड्थ इक्वल होना मतलब एम्पलीट्यूड सेम होना, एम्पलीट्यूड सेम होना मतलब इंटेंसिटी सेम होना। तो दे आर टेलिंग यू दैट I1 equal to I2. Okay. The source is placed symmetrically related to two slits. The intensity of the central fringe is I0, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि सेंटर पे क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। If one of the slits is closed, then the intensity at this point will be. It's a good question. तो अब पहले तो आपको पता होना चाहिए, as I told you, कि स्लिट का विड्थ सेम होना मतलब इंटेंसिटी दोनों स्लिट्स का सेम होना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I, ये कब लिखते हो, ओनली व्हेन I1 इक्वल टू I2, ओनली देन cos स्क्वायर 5/2। ऊपर से सेंटर की जब बात की, एट सेंटर पाथ डिफरेंस इज 0, हेंस फेज डिफरेंस इज आल्सो 0, एंड देयरफॉर cos of 0 is 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसको उन्होंने बोला है I0 इज इक्वल टू 4I। क्लियर? यहां तक पक्का क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा था पता है? दे आर किडिंग। What they are asking you is, घुमा फिरा के ऐसा है तो मैं ये पैटर्न भी मुझे लगने वाला है, तो आई टेक दिस पैटर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स टेक इट। गुड। तो ऐसा कुछ होगा और हमें सिर्फ सेंटर की बात करनी है, फाइन। उससे पहले क्या था, जब दोनों स्लिट्स ओपन थे तब क्या था, तब इंटरफेरेंस पैटर्न था, राइट? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दो सोर्सेस लगते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आया, 4I। तो इसमें I क्या है, I1 और I2 का इंटेंसिटी। I1 और I2 मतलब लाइट कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। अब जब आपने एक स्लिट को क्लोज कर दिया, सो लेट मी क्लोज वन ऑफ द स्लिट्स, कर दिया क्लोज, एक स्लिट को क्लोज कर दिया, तो कौन सा इंटरफेरेंस पैटर्न, कुछ नहीं, राइट? So after one of the slits is closed, there is no interference.
इसका मतलब द स्क्रीन विल बी यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। इसका मतलब पूरे के पूरे स्क्रीन पे I1 या फिर I2 जितना इंटेंसिटी होना चाहिए वो कितना आएगा, I0/4 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, जस्ट अ मिनट। तो ऐसा है, यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू नो दिस। ये है S1 और S2, राइट? अब आप बोलोगे if one of the slits is closed, ठीक है, if one of the slits is closed, if one of the slits is closed, there will be no interference। क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए तो दो सोर्सेस चाहिए ना, एक से कहां काम होगा। so there will be no interference, hence the screen will be uniformly illuminated with intensity I1 equal to I2 equal to I, but I is I0/4, तो I0/4 डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस मतलब थीटा कितना 0.20 डिग्रीज, और डिग्री इज नॉट ऐसा यूनिट। ओके, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए π/180। गुड, आप इसको लिख सकते हो 20 या तो 2 × 10⁻⁻1, 2 × 10⁻⁻1 × पाई, और ये आ गया 18 × 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2, 1/9 मतलब π/9, राइट? ये आ गया 10⁻⁻2। अब लगेगा कि नहीं लगेगा आई डोंट नो, बट मैंने सिर्फ पहले से ही फाइंड करके रख दिया। विल सी इफ वी नीड और इफ वी डोंट नीड। फॉर सोडियम लाइट, ओके, लैम्बडा भी आपको दिया है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस बाय 10%, आपको एंगुलर विड्थ 10% से बढ़ाना है। द नेसेसरी चेंज इन द वेवलेंथ इज, तो हमने ये जो कुछ भी किया है हमको यहाँ पे नहीं लगने वाला, इन शॉर्ट। तो दिस इज द इनिशियल एंगुलर विड्थ, और फाइनल एंगुलर विड्थ आपको बढ़ाना है कितने से, 10% से। 10% मतलब θ1 प्लस 10% ऑफ θ1, तो θ1 प्लस 10% मतलब 0.1, θ1 10% मतलब कितना, 0.1, मतलब 1.1 θ1 मतलब 1.1 इंटू 0.2 है ना डिग्रीज। गुड, तो ऐसा ही रखो, आप कुछ मत करो, मल्टीप्लाई मत करो। क्यों नहीं? क्योंकि आपको बोला है कि एंगुलर विड्थ बढ़ाना है, तो वेवलेंथ में कितना चेंज होना चाहिए, यू सी। और डू यू रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट λ/d, याद है? फ्रिंज विड्थ याद है, λd/d। फ्रिंज विड्थ x is λD/d, तो फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल D is λ/d। हाँ, तो फ्रिंज विड्थ इज λd/d, angular fringe width is λ/d। Did you change the distance between slit? No, मतलब d is constant, therefore angular width is proportional to wavelength। आपको क्या फाइंड करना था? आपको पूछा था कि what should be the necessary change in the wavelength। अब याद रखना, necessary change in the wavelength मतलब डेल्टा λ/λ, मतलब λ2 माइनस λ1/λ1, करेक्ट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिंज विड्थ बढ़ाना है ना, इंक्रीज करने के लिए बोला है ना। फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा बढ़ना पड़ेगा, कम तो नहीं हो सकता। तो बी और डी आएंगे नहीं, अब बात है ए और सी में, राइट? तो अब यू विल राइट डाउन λ2/λ1 इक्वल टू θ2/θ1, तो देयरफॉर λ2/λ1 equal to, what is θ2? 1.1 into 0.2 upon θ1 is
0.2 कैंसल कैंसल, और इसी को आप लिख सकते हो लैम्डा 2 by लैम्डा 1 minus 1. But what is lambda 2 by lambda 1.1? 1.1 minus 1 0.1. तो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 10%. What is 10% of 5890? 589. तो इंक्रीजेस बाय 589. सिंपल. तो ये 10% इंक्रीज है, तो लिख देता हूं. Therefore percentage increase is 10%. Therefore wavelength must increase by lambda must increase by 589 angstrom. हो गया ऑप्शन नंबर ए. So that's it for today.